Hello friends. In the previous lecture we have discussed steady state analysis of PMSM motor and KVL equation and torque equation and different modes of operation, that is motoring operation and braking operation. Okay. Next topic is and there is another topic we have already discussed, field awakening process. Next topic is vector control of PMSM motor. That is, if we have to control the dynamic that is transient state, we have to go for vector control of PMSM motor. That is, it control the transient and steady state analysis. Okay, because on the rotor side in PMSM motor, on the rotor side there is no field winding, there is only permanent magnet. That's why it is a so equation are derived on the rotor reference frame. Okay, that is stator equations are written with respect to the rotor reference frame. That's why model of PMSM in rotor reference frame, that is write each and every equation stator of d axis and q axis with respect to rotor frame. So for showing the rotor reference frame, we have a equation with superscript r. सारे जगह जहाँ पे इक्वेशन आप लिखेंगे, जहाँ पे रोटर रेफरेंस आर की बात करेंगे, वहाँ पे आप रोटर रेफरेंस आर सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे हमने शो किया गया. ठीक है, तो दिस इज योर रोटर, दैट इज परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल हियर, फ्लक्स आर इधर से निकलेंगे, इधर इंटर करेंगे. ठीक है, ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ पोल. ठीक है, और ये आपके स्टेटर डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस. ठीक है, ये अगर पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं तो इसके अलाइन जो है वो आपका डी एक्सिस, इसके 90 डिग्री आपका क्यू एक्सिस. ओके, अब स्टेटर वाइंडिंग की बात करेंगे तो स्टेटर डी एक्सिस वाइंडिंग क्या होगा, हमने यहाँ पे कॉइल दिखाया, इसको हमने प्लस माइनस VDS सप्लाई और IDS सप्लाई. अब विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट आर रखा है. ठीक है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस है RD, डी एक्सिस पे है इसलिए हमने RD से डिनोट किया है. नेक्स्ट है आपका क्यू एक्सिस वाइंडिंग है, यानी क्यू एक्सिस वाइंडिंग इन द स्टेटर. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए VQS एंड इस रेजिस्टेंस इज RQ and its current along this winding IQS superscript R. This is Q axis winding in stator and this is D axis winding in the stator with respect to rotor reference. Because rotor is a permanent magnet, there is no equation for the rotor. So for the stator equation we have to write the equation with respect to rotor reference frame. तो फॉर द डी एक्सिस द स्टेटर इक्वेशन क्या होगा, VDS इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है. तो VDS इक्वल टू IDS इंटू RD, IDS विथ रिस्पेक्ट टू रोटर डिफरेंस इंटू RD प्लस पीस IDS यहाँ पे क्या है, फ्लक्स लिंकेज इन स्टेटर डी एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू रोटर डिफरेंस फ्रेम. ओके, फ्लक्स लिंकेज इन स्टेटर डी एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेफरेंस फ्रेम. नेक्स्ट है आपका माइनस ओमेगा आर साई क्यू एस. ठीक है, यहाँ पे ओमेगा आर साई क्यू एस क्या है, सिंस द एंड वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दीज आर द डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस एंड द रोटर आर रोटेटिंग एट ओमेगा आर स्पीड. ठीक है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड. Stator D axis and Q axis also an permanent magnet, both are rotating at omega r. Okay, so since यहाँ पे ओमेगा आर साई क्यू एस क्या है,
reference frame is rotating with respect to rotor speed, that is rotational induced EMF in the stator. Okay, because the rotor is rotating at the omega speed, a rotational EMF is induced in the d-axis stator winding, also q-axis stator winding. Because the rotor is rotating, stator is the fixed part, but rotor is rotating at the omega speed, the rotational EMF is induced. That's why we represent the omega into psi qs in the d axis. तो यहाँ पे इस स्टेटर डी एक्सिस के लिए यहाँ पे ओमेगा आर साई क्यू एस ड्यू टू क्यू एक्सिस स्टेटर वाइंडिंग इन द डी एक्सिस वाइंडिंग। यहाँ पे माइनस ओमेगा आर साई क्यू एस आया। पी साई डी एस क्या है? Flux linkage is stator axis with respect to rotor reference frame, because on the rotor part permanent magnet is present. Okay, on the rotor part, yeah, north and south pole, its a flux is flux linkage with the d axis is represented by p side es. Okay, similarly, in the similar way, vqs यानी स्टेटर इक्वेशन यानी केवीएल इक्वेशन फॉर द क्यू एक्सिस इंडक्टेंस, क्यू एक्सिस वाइंडिंग के लिए वोल्टेज क्या होगा? आई क्यू एस इंटू आर डी, आई क्यू एस इंटू आर क्यू, आई क्यू एस इंटू आर क्यू प्लस फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट ऑन द क्यू एक्सिस कॉयल, तो पी साई क्यू एस प्लस रोटर आपका ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, इसकी वजह से साइड एस रोटेशनल इंड्यूस EMF इंड्यूस होगा इसमें, तो ओमेगा आर साइड एस। ओके, तो दीज आर सिमिलर टू दैट, बस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वोल्टेज इक्वेशन। वी डी एस इक्वल टू आई डी एस आर डी प्लस पी साइड एस माइनस ओमेगा आर साई क्यू एस, सुपर स्क्रिप्ट आर है रोटर रेफरेंस फ्रेम के लिए। यहाँ पे साइड एस एंड साई क्यू एस की वैल्यू क्या है? साइड एस मतलब फ्लक्स लिंकेज इन द डी एक्सिस स्टेटर ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, ये क्या हो गया? एल डी एस इंटू आई डी एस प्लस साई एफ आर। ओके, साइड एस मतलब इंडक्टेंस ऑफ डी एस with the help of current IDS प्लस साई एफ आर, क्योंकि रोटर पे परमानेंट मैग्नेट हैं तो उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेफरेंस फ्रेम ये हो गया। इसी प्रकार साई क्यू एस से जो है एल क्यू एस इंटू आई क्यू एस आर। ओके, बिकॉज ऑन द क्यू एक्सिस देर इज नो effect of flux linkage on the q axis, that is ये जो है ये आपका q axis है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से इस पे कोई फ्लक्स लिंकेज या इस पे कोई फ्लक्स का लिंकेज नहीं आएगा, दैट्स वाई हियर वी रिप्रेजेंट जीरो, एल क्यू एस प्लस एल क्यू एस इंटू आई क्यू एस प्लस जीरो, दैट इज आयरन पार्ट, दैट इज देयर इज नो मैग्नेट पार्ट। On the d axis there is a magnet part, that is north and south pole, that's why here psi fr is comes। okay, तो ये आपका रोटर, ये आपका डी एक्सिस, दिस इज योर क्यू एक्सिस। डी एक्सिस की बात करेंगे, यहाँ पे डी एक्सिस आपका कॉयल है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर गैप क्या है? मिनिमम है, एयर गैप मिनिमम है तो लीकेज आपका कम होगा, यानी डी एक्सिस आपका परमियंस की बात करेंगे कम होगा, यानी इंडक्टेंस की बात करेंगे डी एक्सिस इंडक्टेंस की बात करेंगे ये आपका कम होगा ड्यू टू एयर गैप कम की वजह से। इसीलिए इन पी एम एस एम मशीन एल डी एस लेस देन एल क्यू एस। ओके, एल डी एस है आपका डी एक्सिस इंडक्टेंस, एल क्यू एस है आपका क्यू एक्सिस इंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट इस है आपका ये साइड एस एंड साइक्यूएस, पुट द वैल्यू ऑफ साइड एस एंड साइक्यूएस इन द इक्वेशन 1 and 2। जहाँ पे साइड एस एंड साइक्यूएस है, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन।
तो वी हैव टू अरेंज इनटू ए मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो VDS और VQS ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। इक्वल टू पुट द वैल्यू, तो यहाँ पे RD प्लस LDS इंटू P मल्टीप्लाई बाई IDS प्लस माइनस ओमेगा RS इंटू LQS इंटू IQS प्लस ओमेगा R इंटू साई FR की वैल्यू आपका यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, बिकॉज रोटर डिफरेंस फ्रेम की वजह से यहाँ पे नो EMF इंड्यूस होगा। सिमिलरली VQS अरेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इसको अरेंज कर लीजिए। IDS और IQS वाले को सिंपल एक तरफ कर लीजिए और ओमेगा R वाले को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वह साई FR क्या है? साई FR फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर, क्योंकि रोटर पर आपका परमानेंट मैग्नेट है, तो उसको अगर आप इक्विवेलेंट टू फील्ड वाइंडिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? LMD इंटू IFR। सपोज दैट अगर वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं होता तो आप सिंपली क्या करते? कॉयल रखते, उसमें करंट इंड्यूस कराते, तो जो आपका साई FR है वो इक्विवेलेंट टू है LMD इंटू IFR। ओके, तो दिस इज योर मॉडल ऑफ द PMSM। नेक्स्ट है आपका टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन के लिए सिंक्रोनस मशीन में हमें टॉर्क इक्वेशन जो हम जानते हैं, तो सिमिलर जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे भी है टॉर्क इक्वेशन। T बराबर 3/2 इंटू P/2 फॉर 3 फेज, साई DS इंटू IQS माइनस साई QS इंटू IDS, जैसे यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में था। तो पुट द वैल्यू ऑफ साई DS एंड साई QS इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे साई DS की वैल्यू LDS IDS प्लस LMD IFR इंटू IQS माइनस साई QS की वैल्यू रख दीजिए LQS इंटू IQS इंटू IDS। ओके, फिर आप इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो 3/2 LDS माइनस LQS इंटू IDS इंटू IQS प्लस LMD IFR इंटू IQS, ठीक है। तो जो टॉर्क इक्वेशन वहाँ पे आता था, वहाँ पे LD माइनस LQ या SD माइनस SQ आता था वहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में, दैट रिप्रेजेंट द रिलक्टेंस। सिमिलर यहाँ पे भी है रिलक्टेंस टॉर्क ड्यू टू रिलक्टेंस वेरिएशन इन D एक्सेस एंड Q एक्सेस। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है आपका LMD IFR इंटू IQS, ये आपका है गिव्स द फील्ड टॉर्क ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट IFR because of permanent magnet। तो torque has two parts, first one is reluctance torque, second one is field torque। okay, next vector control of PMSM means, yes, it is simply so that the control of torque and control of flux independently, that is we can control the controlling the torque and flux yani above the base speed and controlling the torque independently operation। okay, that's why you use for vector control। ये है आपका फेजर डायग्राम, ये D एक्सिस, दिस इज योर Q एक्सिस। D एक्सिस से along आपका फील्ड वाइंडिंग बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इक्विवेलेंट टू फील्ड वाइंडिंग फील्ड करंट। Suppose that this is your stator current which lags, this is your stator current which lags, and this is your delta prime angle। okay, so IS is broken into two parts, horizontal and vertical part, that is IF and IT। IS has two parts, that is IF and this is your IT। तो we know that torque directly proportional to साइन डेल्टा प्राइम। तो यहाँ पे आपका IT क्या है?
IT की वैल्यू हम यहाँ से इन द टर्म्स ऑफ IS एंड डेल्टा प्राइम लिखना चाहेंगे। तो डेल्टा प्राइम ये एंगल है, तो इसके सामने वाला जो ये वैल्यू होगी, ये क्या होगा, IS साइन डेल्टा प्राइम, दैट इज IQSR। ओके, दैट इज IT इक्वल टू IQSR इक्वल टू IS साइन डेल्टा प्राइम। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा along द IF, ये होगा आपका IS cos डेल्टा प्राइम, IS cos डेल्टा प्राइम, दैट इज IF, दैट इज IDS। ओके, तो जो टॉर्क इक्वेशन आया है उसमें जो IDS एंड IQS टर्म थे, उनसे IDS और IQS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IS और साइन डेल्टा प्राइम या इन टर्म्स ऑफ IS एंड डेल्टा प्राइम के टर्म में रख दीजिए। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा 3/2 π/2 LDS माइनस LQS। यहाँ पे क्या था, IDS एंड IQS था, तो यहाँ पे IDS की वैल्यू और IQS की वैल्यू रख दीजिए। तो IS स्क्वायर साइन डेल्टा प्राइम इंटू कास डेल्टा प्राइम प्लस LMD IFR पहले से था, यहाँ पे क्या था IQS, तो यहाँ पे हो गया IS साइन डेल्टा प्राइम। इसको अरेंज कर दीजिए, इस पूरे टर्म को साइन टू डेल्टा प्राइम में रख दीजिए, इसलिए यहाँ पे हाफ आ गया, इसको यहाँ पे हाफ आने दीजिए। तो दिस इज योर द टोटल टॉर्क इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन, डेल्टा प्राइम शुड बी π/2। if we put the side delta prime equal to π/2, this value goes to the sin pi, this यानी this term goes to 0, this term goes to 0, and remaining part of the LMD IFR IS delta prime. So that is Mason torque is given by the 3/2 into P/2 LMD IFR IS. It comes when the delta prime is equal to π/2. It looks like a DC machine, that is torque equal to I1 I2 and sin delta, that is delta equal to π/2. Because in the DC machine there is a field winding and two current, field current and armature current, and there is an angle between the π/2. In similar way, in PMSM machine, if we put the delta prime value π/2, this term goes to 0, remaining term is this there, and here is field current value and quadrature axis, यानी this value IS sin delta prime means IQS value means 90 degree to the IFR। ओके, अगर सपोज दैट दिस इज योर IF है, तो ये आपका IQS है यानी 90 डिग्री। तो इट लुक्स लाइक ए DC मशीन एक्सप्रेशन। ओके, तो IS इक्वल टू क्या होगा, IF प्लस IT। IF क्या है, स्टेटर फ्लक्स कंपोनेंट ऑफ द करंट, दैट इज IDSR। ओके, बिकॉज IF यानी फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग मतलब D एक्सिस, ठीक है, दैट इज स्टेटर फ्लक्स कंपोनेंट ऑफ करंट। IT आपका क्या है, यानी IQS मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस। तो स्टेटर टॉर्क कंपोनेंट ऑफ द करंट रिप्रेजेंट द IT। तो टॉर्क इक्वल टू 3/2 P/2 LMD IFR इंटू IS। इस पूरे टर्म को कांस्टेंट कर दीजिए, तो T इक्वल टू K1 LMD IFR इंटू IS, where the K1 is 3/2 into π/2. So this is your the torque equation. A vector control of PM machine is simply means that it control the torque and the flux independently operation. There is no relation directly connected to them. That is control up to the base speed. The gating signal control is given to the driver circuit such that it desired low torque and the rotor position. And the for control the above base speed, a field weakening process is control. Yeah, comes in the picture. So this is your vector control of PMSM motor. And next topic we will discuss block diagram. Okay, thank you.